Check. Good morning, everyone. सबको शुभोदय। So good to see you all. मैं हम सभी को देखना बहुत खुशी देता है। So for today's introduction, we'll turn into Luke chapter 10 and verse 20. हम देखेंगे लूका के 10वां अध्याय और 20वां वचन। Luke chapter 10 and verse 20. लूका का 10वां अध्याय और 20वां वचन। It says, "Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven." So Jesus Christ, our Lord, He is telling, rejoice that because your names are written in heaven. यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि इस विषय में आनंद करो कि तुम्हारा जो नाम है वो स्वर्ग में लिखा गया है। So here, Jesus Christ is not promoting other wrong kind of rejoicing, but a right rejoicing. यहाँ पे यीशु मसीह कुछ गलत प्रकार के आनंद के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन सही कारण देते हैं कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। So here, in the book of heaven, the book of life, if your names are written, we need to rejoice about it, Jesus is telling. यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जीवन के पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखा गया है, उसमें आनंद रहना। So there is a book in heaven. So in that book, if your name is written, we need to rejoice about it. स्वर्ग में एक पुस्तक है, उस पुस्तक में अगर हमारा नाम लिखा गया हो तो उस विषय में हमें आनंद करना चाहिए। In that book, God records our name. The people who are saved by the blood of Jesus Christ, God records their names in that book. यीशु मसीह के लहू के वजह से जिसने भी उद्धार पाया है और उनके नाम परमेश्वर उस पुस्तक में लिखते हैं। Okay. And also we'll turn to Revelation chapter 20 and verse 15. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 15 वचन। So if God is omniscient, He knows everything, why does He maintain a book? अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सारे चीजों को वो जानते हैं, तो उनको एक पुस्तक में चीजें लिखने की क्या जरूरत है? Right? So that book is to show, is an evidence for angels and that these people are saved on so and so dates. वो पुस्तक लिखा गया है परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन दूतों को, स्वर्ग दूतों के लिए एक सबूत ठहरेगा वो कि ये सारे जो लोग हैं उन्होंने उद्धार पाया है। And for the believers, when we come also in heaven, we can see it, our names in heaven. और विश्वासी जब हम भी स्वर्ग जाते हैं, हम भी देख सकते हैं कि हमारा नाम वहाँ पे लिखित है। So Revelation chapter 20 and verse 15. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15 वचन। And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So you see, here God is telling, if our name is not written in this book of life, we will be thrown into hell. यहाँ पे वचन कहता है कि जिसका भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया है वो आग में डाला जाएगा। So person who is not saved by the blood of Jesus Christ, he will be thrown into hell. यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिस किसी ने भी उद्धार नहीं पाया है वो नरक में डाले जाएंगे। Many people rejoice if their names are written in the Guinness Book of World Records. और बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं अगर इस संसार के पुस्तक में, एक महान पुस्तक में, नामचीन पुस्तक में उनका नाम लिखा गया है। One day that book will be torn and in the last days the book may get lost or get wet also, we don't know. और हम नहीं जानते उस पुस्तक के साथ आगे क्या होने वाला है। लोग उसके कागज को फाड़ सकते हैं, वो भीग सकता है, कहीं पे वो खो सकता है। It's a temporal book. क्योंकि वो तात्कालिक है। But this book of life is an eternal book, forever settled in heaven. लेकिन जीवन का ये जो पुस्तक है वो हमेशा स्वर्ग में स्थिर रहने वाला है, वो निरंतर रहने वाला पुस्तक है। So sometimes when our name comes in the newspaper, our photo and name, we will be very happy. अगर कभी किसी भी वजह से अखबार में हमारी तस्वीर छपती है या हमारा नाम लिखा जाता है, हम सभी को बहुत खुशी होती है।
And that newspaper, people will forget it the next day. लेकिन बाद में जिस अखबार में जिस लोगों ने आपके नाम को छापा है वो लोग भूल जाएंगे। But Jesus is telling, rejoice in this because your names are written in heaven. लेकिन यीशु मसीह हमें आनंदित होने का एक बहुत ही अच्छा कारण देते हैं कि इसलिए आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के जीवन पुस्तक में लिखा गया है। Many people have wrong kinds of happiness and joy in their life. बहुत सारे लोगों के जीवन में आनंद तो होती है लेकिन गलत कारणों की वजह से। Maybe we are rejoicing in our possessions. शायद हो सकता है जो भी संपत्ति हम प्राप्त करते हैं उसमें हम आनंदित है। Maybe our happiness and our joy is in the people whom we like. या हमारा आनंद हमारी खुशी जिस लोगों से हम प्रेम करते हैं पसंद करते हैं उन लोगों में है। In our family members, in our friends, our joy is found in them. हो सकता है हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, उनके सदस्यों में हमारी खुशी हम पाते हैं। And in our wardrobe, our joy is in our wardrobe. या कभी हमारे कबर्ड में जो कपड़े रखे गए उसमें हमारी आनंद हो सकती है। Maybe our bikes, our cars, our accessories and what not. या बाइक्स हो सकता है या किसी भी प्रकार के वस्तु कुछ भी हो सकता है। But it is a temporal joy. लेकिन वो आनंद तात्कालिक है। It's a temporal happiness which fades away one day. और वो ऐसा आनंद है जो एक दिन घट जाएगा। But God is telling, your names are eternally written with the ink which is unerasable. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे नाम एक निरंतर रहने वाले पुस्तक में लिखा गया है जो कभी ना मिट सकेगा। So just imagine that every one of our names is written in the book of life. एक बार ऐसे सोचिए अगर यहाँ पे मौजूद हम सभी के नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा गया है So how joyful it is. कितना आनंद वो विषय लाता है। You know, the beautiful thing about this book of life, और एक खूबसूरत बात इस पुस्तक के बारे में, we don't need to pay any money for our names to be registered in this book. इस जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाए इसके लिए तुम्हें कोई भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। No bribe, no money, no exchange, nothing. रिश्वत- Only we need to give our hearts to Jesus. रिश्वत नहीं, कोई पैसा नहीं, उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देना है, केवल हमें यही करना है कि अपने हृदय को यीशु मसीह को सौंपना है। In return, God has paid a price. He has given his life for our names to be written in that book. उसके बदले में परमेश्वर ने एक ऐसा बलिदान दिया है ताकि हमारा नाम जो है उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। You know, for us to be registered in some books and in some books in this world, we need to give bribes, maybe we need to give money to some officials. इस संसार के पुस्तक में अगर हम अपना नाम चाहते हैं तो उन बड़े नामचीन लोगों को हमें रिश्वत देनी पड़ती है। But God is so good to us, God is so gracious and loving that He has freely imprinted our name in the book of life. लेकिन परमेश्वर महान है और बहुत ही अद्भुत है और अच्छे है कि बिना मांगे बिना कुछ करे हमारा नाम जो है उस जीवन के पुस्तक में लिखा गया So है। that is grace registration. और ये अनुग्रह के वजह से हमारा नाम वहाँ पे दाखिल हुआ है। We don't deserve for our names to be written in that book. We are undeserving sinners, worse sinners, but still God wants to forgive us and write our names in that book. क्योंकि हम घोर पापी है, हमने बहुत सारे पापों को किया है, हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में पाया जाए। Another thing is, once you believe in Jesus Christ as your personal savior, that next second only your name will be instantly written in that book. और दूसरी अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद मतलब उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के अगले ही पल तुम्हारा नाम उस पुस्तक में लिखा जाता है। Maybe in the books of this world, they will take a lot of time to register your name in that books. होता ऐसे है कि इस संसार में अगर किसी भी पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाना चाहिए वो बहुत देर लेते हैं। Right? So Jesus Christ instantly, with love and with honor, Jesus will write our names in that book. लेकिन यीशु मसीह तुरंत ही प्रेम के साथ हमारे नामों को उस पुस्तक में लिखते हैं। Because we belong there by the blood of Jesus Christ. क्योंकि हम वहाँ पे इसीलिए मौजूद हुई है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। And the third thing about this book of life is this book is eternal, forever settled in heaven. और तीसरी बात इस जीवन के पुस्तक के बारे में ये हमेशा स्वर्ग में स्थिर है, हमेशा रहेगा। And this book cannot be torn
and our names will not be blotted out from this book. और इस पुस्तक को कोई भी नहीं फाड़ सकता, उसके कागज को, और कोई भी हमारे नाम को उस पुस्तक में नहीं मिटा सकता, It can't be burnt also. और उसे कोई जला भी नहीं सकता, It's a strong book. क्योंकि वो बहुत ही ताकत को रखता है, It has the power of love, it has the power of blood, and it's written with it. क्योंकि प्रेम और लहू का ताकत जो है उस जीवन के पुस्तक में है। So, do you want your name to be written in this book of life? तो क्या आप चाहते हो कि इस जीवन के पुस्तक में आपका भी नाम लिखा जाए? We have seen in Revelation 20, verse 15, if our name is not written in the book of life, we will be casted in the lake of fire, that means hell. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 15 वचन के अनुसार अगर हमारा नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाता है तो हम सभी नरक में फेंके जाएंगे। So, if you are still confused, if you do not have peace in your heart that maybe I am not saved, and if you desire for your name to be registered in this book, now is the time for registration. और अगर अभी भी आपके मन में कोई उलझन है, कोई संदेह है कि क्या मैंने सही में उद्धार पाया है या नहीं, आप इसी वक्त पा सकते हैं। And as I was preparing for this message, God gave the thought to preach gospel like this. और जैसे मैं इस प्रचार के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ऐसा सोच दिया कि मैं सुसमाचार बांटूं। Sometimes God gives us opportunities to preach gospel, maybe to our neighbors, society members, institute members or company members. और कई बार परमेश्वर हमें अवसर देते हैं हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे समाज में ऐसे लोगों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए। We can ask this question to them. और ये प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं, Is your name written in the book of life, my brother or my sister? भाई या बहन, क्या तुम्हारा नाम लिखा गया है उस जीवन के पुस्तक में? So if not, you can believe in Jesus as your personal savior. अगर इस विषय में तुम्हें अभी भी संदेह है, तुम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार सकते हो। This is the way we can preach gospel, just by one question. ये एक प्रश्न पूछकर तुम लोगों से सुसमाचार बांट सकते हो। And because God is wise, He will give us His wisdom how to preach gospel to people. और क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो हमें ज्ञान देते हैं अनेक तरीके से कैसे हम सुसमाचार लोगों को पहुंचा सकते हैं। So if you are listening to this message and if you are burdened with your sins and if you do not have clarity about your life, Jesus is at the door of your heart. और अगर आप ये संदेश सुन रहे हो और आपके उद्धार के बारे में अभी आपके मन में सवाल है, उलझन है, आप अपने पापों से भर चुके हो, यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे के पास खड़े हैं। If you want to believe in Jesus Christ, you can receive it Him now. और अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें, आप इसी पल उसे कर सकते हो। Because our names will only be written in the book of life only when we believe in Jesus as a personal savior. क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए, उसका एक ही शर्त है कि तुम्हें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना होगा। Because this book is a holy book, for our names to be written in that book, our sins need to be forgiven. क्योंकि वो जो पुस्तक है वो पवित्र है, अगर हमारा नाम वहाँ पे लिखा जाना चाहिए तो पहले हमारे पाप को धोना है। So if you want to receive Jesus Christ in your heart, you can repeat after me in this prayer. अगर यहाँ पे कोई है जो यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारना चाहता है, ये प्रार्थना आप मेरे साथ बोल सकते हैं। So freely Jesus Christ can write our names, He can save our soul. क्योंकि उचित रूप से वो हमारे नाम उस पुस्तक में लिखते हैं और हमारे प्राण को वो बचाते हैं। Immediately, instantly Jesus can save you. और वो तुरंत करते हैं, देरी नहीं। We don't have to give Him anything. हमें कुछ भी देने के लिए जरूरत नहीं है, Just our heart of belief. केवल विश्वास से भरा हुआ अपना हृदय। So if you want Jesus Christ, you can just bow your head and close your eyes as Jesus is here. और यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दिल में आए तो आप ये प्रार्थना कह सकते हैं। Lord Jesus Christ, हे यीशु मसीह, I am a sinner मैं एक पापी हूँ and my sins will take me to hell. और मेरा जो पाप है वो मुझे नरक की ओर चलाएगा। But you're a God who has loved me. लेकिन आप ऐसे परमेश्वर हो जिसने मुझसे प्रेम किया। And you have died for my sins. आप मेरे पापों के लिए मर चुके हैं। You want me to take to heaven. और आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग आऊं। I pray that you forgive my sins, God. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप मेरे पापों से मुझे माफ करें। I pray that you write my name in the book of life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन के उस पुस्तक में मेरा नाम आप लिख दो। Have mercy on me, Jesus. मेरे ऊपर आप अपनी करुणा दिखाइए। I believe in you as my savior.
मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। Amen. आमीन। So if you have said this prayer, Jesus will come into your heart and will forgive your sins. अगर आपने मन से ये प्रार्थना किया है तो यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे और हर एक पापों से आपको माफी देंगे। And hereafter you will not be a sinner, but you will be a citizen of heaven. और अब से लेकर आप एक पापी नहीं बुलाए जाओगे लेकिन स्वर्गीय वासी बुलाए And जाएंगे। the time of rejoicing will start in your life. और आपके जीवन में आनंद की जो घड़ी है वो अभी से शुरू होगा। May God bless this portion. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. धन्यवाद।